So the Supreme Court says that they will form a panel as government negotiations are bound to fail. These are the words of the Supreme Court. The Supreme Court has issued notice to Centre, Punjab, Haryana, Delhi, and all of them will have to respond by tomorrow. In fact, the Supreme Court has made 8 additional parties to this case. They say, the Supreme Court in its wisdom feels, how can we arrive at a judgment without listening to the farmers or the other side of the story, right? So we'll give you the list of those 8 additional parties who are against this law, who have now become party to this case. The Chief Justice says, what's the point of saying that when it is adversely affecting the farmers? He says, we will form the panel as government negotiations are bound to fail. Then the government says, we will not do anything against the farmers, to which the point that was made by the Chief Justice, that was the point of saying that, as it will adversely affect the farmers. Then the government says it's only yes or no for the farmers. They want laws repealed, to which the Chief Justice says government negotiations will again fail as they won't agree. Panel to be formed with government and farmers representatives. This will soon become a national issue if not resolved. Look at the seriousness that the Supreme Court attaches to this problem. And then the Chief Justice says, will have to be solved through negotiations. So those negotiations are going to begin once the panel is decided. But as we mentioned to you at the very beginning, now there are additional parties to this case in the Supreme Court. Who are those parties? On your screen right now. So you've got the Bharatiya Kisan Union, the Rakesh Tikait faction. He is now party to this case. Remember, he is opposed to the bill in its present form and he is among those protesting. Then the Bharatiya Kisan Union, Sidhupur. By the way, the Bharatiya Kisan Union has many outfits, many different sections or divisions. BKU Rajewal faction, BKU Lakhowal faction. Now these are all factions that are against the bill and they were not being represented in the Supreme Court so far. Now tomorrow they will be. The Jamhuri Kisan Sabha, BKU Dakonda, BKU Doaba, and Kul Hind Kisan Federation. So in its wisdom, what the Supreme Court has done is that it has brought all parties on the negotiating table, or all parties to become a party in this case. And a panel will most likely is also going to be formed. We do not know when, but this matter is going to come up in the Supreme Court tomorrow. Let's now introduce our guests on discussion number 1. I have with me Satpal Singh. He's a farmer. He's a farmer who signed the letter supporting the Farm Bill. And I also have Mr. Rakesh Tikait. He's the leader of the Bharatiya Kisan Union Tikait faction. मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं टिकैत साहब. आप देख रहे हैं कि आपके गुट को और भी अलग जो गुट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने पार्टी बना लिया है इस केस में. आप ओरिजिनली पार्टी नहीं थे, लेकिन अब आप इस मामले में पार्टी बन गए हैं. आपको क्या लगता है अब उच्चतम न्यायालय से ही कोई हल मिलेगा? नहीं, ठीक है. उच्चतम न्यायालय जी का स्वागत करना चाहिए सबको, माननीय उच्चतम न्यायालय का. और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो ये शाहीन बाग वाला मैटर नहीं है ना, उसकी तरह से इसको मानना जाए, ये भी उन्होंने कहा है. और सरकार को कहा है कि आप इसमें कमेटी बनाओ और उनकी बात सुनो. ये उच्चतम न्यायालय ने कहा है जी. अब सरकार का कोई मैसेज तो अभी आया नहीं, लेकिन सरकार फिर भी एक चीज कर रही है कि हम बिल वापसी तो नहीं लेंगे. ये तो बात अंदर की है, नहीं लेना क्या करना. वे कमेटी बनने से पहले, बातचीत करने से पहले, और वे फैसला सुनाने लग रहे हैं. फैसले की थोड़ा बात आई, ये आके बात करो किसानों से, ये कहा है. नहीं, लेकिन देखिए सरकार अपनी तरफ से क्या कह रही है टिकैत साहब. लुक एट व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग. सरकार बार बार ये चीज बोल रही है कि आप ही अड़ गए, आप क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने को तैयार है नहीं. सर आपको आवाज आ रही है टिकैत साहब? आवाज आ रही है. हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि हम कह रहे हैं आओ क्लॉज बाय क्लॉज, लेट्स टॉक क्लॉज बाय क्लॉज, कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है आप वो बताइए ना. लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून ही हटा दो. क्लॉज पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप?
जब वे ये कह रहे कि 15 में से हम 12 क्लोज हटा रहे, तो किसी चीज में अगर 15 पैरामीटर्स है उसमें से 12 भी हटा रहे तो फिर वो बिल्ली क्या रहेगा या वो क्या रहेगा, वो तो पूरा और ये तो सरकार की सिरदर्दी हुई ना। ठीक है साहब, आप बताइए, इफ द गवर्नमेंट इज विलिंग टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, अगर सरकार जो है वो आपकी मांग आप ही के शब्दों में मानने को तैयार हो रही है, 12 मांगे मानने को तैयार हो रही है, तो आपके तो हित की बात है। फिर इस चीज पे अड़े रहना कि कानून हटा दो, ये कानून तो आप ही के हिसाब से हो गया। उन्होंने बना क्यों दिया था ऐसा? नहीं, तो इनको पूरे को ही बदल लो, फिर नया बना लेंगे, एक बढ़िया ड्राफ्ट लेकर आएंगे। एमएसपी पे उनका यही सवाल है। एमएसपी पे ये कह रहे हैं कि एमएसपी पहले जैसी रहेगी, खत्म नहीं होगी। उसी से तो नुकसान है कि बिल में तो एमएसपी का जिक्र नहीं और व्यापारियों को दे दी छूट। हाँ। हमने एक ही तो बात कही, किसान का तो एक ही सवाल था कि एमएसपी को आप लीगलाइज कर दो, उस पर आप कानून बना दो, ठीक है, कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी आएगा वो खरीद नहीं करेगा। हमने सरकार को तो कभी कहा ही नहीं कि पूरी एमएसपी सारे फसलों की जो 24 फसलें हैं कि उस पे एमएसपी पे सरकार खरीद करेगी। अब और सरकार पर बर्डन पड़ेगा। हमें भी पता कि सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं खरीद क्या होगी। देखिए, अब तो आप पार्टी बन गए इस मामले में, आप भले ही बेशक अदालत ना गए हो, लेकिन यू आर नाउ पार्टी टू दिस केस। सुप्रीम कोर्ट में आपकी दलील क्या रहेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह तो दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि किसानों से बातचीत करो और कल का देखते हैं कि कल उसमें क्या डिसीजन देते हैं। नहीं, ये नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब हम पैनल बनाएंगे, क्योंकि सरकार से जो बातचीत हो रही है वो तो फेल होनी ही होनी है इस तरीके से। भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि पैनल बनाएंगे, और हम भी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार से बात करवा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि कानून ठीक है। नहीं, वो कैसे कह सकते हैं? और यही कानून रहना है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, हम ये तो 6 बार बात होगी ना भाई, सुप्रीम कोर्ट जी भी रहेगा, बीच में रहेगा। हमने तो कहा था भाई कोई बिचौलवा आ जाए हमारी बात सुन ले, ये तो हमने पहले भी कहा है। और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने ठीक है, धन्यवाद करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, ने ये भी कहा कि इसको शाहीन बात मत, उसको तो सब मानेंगे। देश में रहना होगा तो संविधान को तो मानना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट इनसे नहीं पूछ जाएगा कि कंसल्ट आपने जब ये बनाई, आज कमेटी उनके प्रेशर में ही तो बना रहे हैं ना। सही बात है। जब ये बिल लेकर आए तो जब क्यों कमेटी नहीं बनाई, क्यों कंसल्ट नहीं करा? बहुत बड़ा सवाल। तो ये जो कंसेंट और कंसेंसस बनाने की बात है, ये अब सुप्रीम कोर्ट आकर के बनाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस परहैप्स विल बी the best solution, but the only problem is that this solution could have been avoided. This escalation would not have happened had the consensus been built earlier. सतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं झज्जर से। सतपाल सिंह is among those farmers who support this bill. सतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने टिकैत साहब की बात सुनी, वो तो नई समन्वय बन रहा है, आपने लेकिन समर्थन कर दिया इस बिल का, ऐसा क्यों? सर, हम 7 तारीख ने माननीय मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले थे और हमने ये बोला था किसान संगठनों ने कि सरकार 83 साल देश को आजाद हुए हो गए, सरकार कोई किसान हित में कोई बिल लेके आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। हमने सपोर्ट की बात नहीं की थी, हमारी बात को मीडिया ने मरोड़ तोड़ कर दिखाया। हमने हमारे जो तथ्य थे वो तथ्य वैसे वैसे पेश नहीं किए गए, उन चीजों को मोड़ तोड़ कर पेश किया गया। हमने मुख्यमंत्री अपने केंद्रीय मंत्री जी को ये बोला था, सर आप एमएसपी की जो परिभाषा है इसको चेंज कीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप मिनिमम सेलिंग प्राइस कीजिए। जिस तरीके से हरियाणा में सर जो एमएसपी जो बोलते हैं उसके लिए खरीद तो गेहूं की अप्रैल के महीने में होती है, 1 महीना खरीद होती है, लेकिन उस समय पे गेहूं 1930 बिक रहा था, आज गेहूं 1500 बिक रहा है किसान का। लेकिन कोई ना कोई चीज आप इस तरीके की बनाइए, अब भाई इससे नीचे ना बिके गेहूं, जब मैं जनवरी में बेचूं या फरवरी में कभी भी मैं बेचूं तो मेरे का एक प्राइस होगा फिक्स, इससे नीचे मेरा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ में हमने एक बात ये भी रखी, अक्सर आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजें रखिए। अब 24 फसलों के ऊपर भारत सरकार ये एमएसपी देती है, लेकिन 24 फसलें थोड़ी होती हैं देश में, किसान तो बहुत सारी फसलें उगाता है। वर्तमान में स्थिति ये है, मैं बहादुरगढ़ इससे नजदीक है, नजफगढ़ दिल्ली में ही लगता है, यहाँ पे किसानों ने अपने गोभी के खेत बा दिए, 1 रुपए किलो तक किसान की गोभी बिकने लग रही है आज के दिन, और जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता उसको 30 रुपए मिल रही है। मेरी ब्रोकली 5 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन आप जो शहर में बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, उन लोगों को 100 रुपए किलो बिक रही है। इस बीच वाली चीज को लेने कौन लग रहा है? बिचौलिया, व्यापारी, आड़ती। तो किसान का वो क्यों खा रहे हैं? ऐसा भी ना हो अब जैसे मैं मरने लग रहा हूँ, किसान मरने लग रहा है, उसके 1 रुपए नहीं, लेकिन आप ये बताइए, खैर अब तो ये अदालतों में तय होगा, लेकिन
एक डर इसी बात का है ना कि ये एक बिचौलिया हटाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि किसान किसी दूसरे बड़े बिचौलिए के चक्कर में फंस जाए। ट्रस्ट तो रहता ही है। आई मीन वी नो द स्टोरीज ऑफ हाउ देयर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फार्मर्स। जैसे अन्ना जी का आंदोलन था, हमें तो अब ये डर लगने लगा भाई ये एक आंदोलन किसानों के हित में शुरुआत इसकी हुई थी। 83 साल के बाद में सरकार ने कुछ सोचा, अच्छा नहीं था इस बिल में, सभी चीजें अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कहता सभी अच्छी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी थी, और जो कुछ चीज अच्छी है तो उसके साथ में कुछ किसानों की जो मांग है उसके संशोधन करके इसे लागू कर दो। कहीं ऐसा हाल ना हो जैसे अन्ना के आंदोलन का हुआ था, चीजें शुरुआत में ठीक थी, बाद में पता चला उस आंदोलन से कोई और चीज निकल गई। बताइए टिकैत साहब, जवाब देंगे आप? एक सेकंड मैं जवाब ले लेता हूं। राकेश टिकैत, आपने सुना कि और किसान क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कहीं ऐसा ना हो अच्छा करते करते आप अपना नुकसान कर बैठे। नहीं, नुकसान क्या, मेरा थोड़ा कुछ नुकसान है, देश का होगा। और देश का जो किसान है वो आया हुआ है यहाँ पे, ये बका के लोगों को लेकर आते हैं। भाई ये जहाँ से किसान है हमारे भाई, टमाटर का इनका हाल देखो क्या हुआ। सरकार ने तय करके हम 6 रुपये देंगे, वो 6 रुपये भी नहीं दिया। बाजरे का हाल देखो, जब ये तय होगा कि एक किसान दूसरे देश का कहीं का भी बेच सकता है, प्रदेश का जाके राजस्थान का, यहाँ का आप देखो क्या इनका बाजरे का हाल हुआ, ये जिन क्षेत्र से आते हैं। यही तो कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय कर दे कि इससे कम पे खरीद नहीं करेगी। इन्होंने बिल्कुल बात ठीक कही। मतलब कोई फसल ऐसी भी होती है, कोई देश में कोई प्रोडक्ट या कोई चीज ऐसी है कि कह रहे हैं, जिसमें कहना है कि जब संशोधन करने को कह रही है सरकार, तो आप उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? हाँ जी, मजबूत कानून बनाना ही उद्देश्य है ना, तो जब वो मजबूत हो रहा है तो आप मान जाइए। ये अड़े रहना कि नहीं इसको हटाओ। उन्होंने किसी किसान से अगर इन्होंने बुझा हो, एक आदमी मुझे बता दो, इनके अपने क्या जो बीजेपी का किसान संघ है उससे बुझा हो, बद्री भाई हमारे साथ थे आज, उनसे बुझा हो, स्वदेशी जागरण मंच से बुझा हो। ये तो दो तो इन्हीं के संस्थाएं हैं इनकी दोनों। ओके, इन्होंने किसी से नहीं बुझा, एक से भी। ठीक है भाई, पहले भी भूमि अधिग्रहण एक्ट देश में आया। राकेश टिकैत और सतपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। द पॉइंट दैट इज बीइंग मेड इज it's simple. There is a trust deficit because consensus was not built before having this legislation in place, and that is why that exercise now, unfortunately, for a court which is super busy, has so much more. A Supreme Court has to do this, or the judiciary has to do the job that should ideally be done by the governments. Anyway, this process is now begun, and hopefully a solution will come. But the point very simply is, when the judiciary is doing the job of a government, it's a telling commentary on what the government itself is capable of doing.